basic concept which we should be very much clear with. ठीक है? So let me start with the GIS today. तो GIS का मतलब क्या होता है? Geographical Information System. ठीक है? I will be using both the languages. हाँ? The main purpose is to make you people understand. So geographical information system. ठीक है? Now what is geography? All of you know it is the study of the earth. Right? आप लोग geography तो अगर आप लोग geography background से you might be very much clear with it, and if you are not, you have already studied this in your school time, right? तो geographical का मतलब होता है the study of the earth. अब earth में क्या है? In earth we can have features, we can have phenomena. Now what are features? Features can be human as well as natural. ठीक है? सो नेचुरल मीन्स क्या? जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स है, द माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, वट एवर द नेचुरल फीचर्स. ठीक है? ह्यूमन मीन्स वट एवर वी आर with the human people or human being are doing. Moreover, over the Earth's surface, we also have the phenomena like precipitation, temperature, right? These are the phenomena, right? So whatever is happening over the Earth's surface, we deal this in geography. हम ज्योग्राफी में ह्यूमन एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम नेचुरल एस्पेक्ट भी देखते हैं. ठीक है? अब हमें अब सपोज मुझे कुछ प्लान करना है. वेयर आई एम प्लानिंग ओवर द अर्थ सरफेस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर इस अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ प्लान करना है, आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ कलेक्टिंग सम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है? So in GIS, first of all, we deal with whatever it, this particular terms means whatever existing over the Earth's surface. Information is to collect certain information of this geographical feature. And system means we have to work in a systematic manner. ठीक है? अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ते हैं. What is information now? Now this concept can be different in different subject matter. एक इकोनॉमिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन का मतलब हो सकता है द स्टेटस ऑफ शेयर मार्केट, राइट? लाइक मैथमेटिशियन के लिए इंफॉर्मेशन क्या होगा? दे डील विद द नंबर्स, वैल्यूज, राइट? But now in this particular subject matter, that is GIS, with information means we basically mean geo information. ठीक है? Geo means earth, and whatever existing in the earth surface we deal in GIS. Geo information. और जैसे ये term geo, whenever you will be using this term geo, you mean the latitude and longitude. ठीक है? जैसे कि मानो I want to make a study on the Himalayas. ठीक है? So what I have to do? मुझे एक मैप बनाना है हिमालय पे. So what I have to do? First of all, Himalaya is existing over the earth surface. मतलब हिमालय एक नेचुरल फीचर है. ठीक है? अब मैं उसको मैप में अगर दिखाना चाहती हूँ, I should have the exact location of Himalaya. Where is Himalaya lying? Right? So in GIS, whenever we want to create information of certain feature and phenomena, we should first of all try to get its locational value. ठीक है? Now what is locational value? Locational value means the x and y, or the latitude and longitude. ठीक है? Now system means what? We do this whole thing in a systematic manner. तभी अब मैं आप लोगों को जब GIS पढ़ाऊंगी, ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है कि यू विल फील कि क्या पढ़ा रही है मैम, इसका क्या यूज है. बट यू विल अंडरस्टैंड इट वंस you will go to the advanced part, right? So if I talk about system, so in GIS we work in a systematic manner. सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा क्रिएशन. ठीक है? डेटा कैसे क्रिएट किया जाता है. जैसे कि सपोज मुझे आई वांट टू प्लान समथिंग. ठीक है? आई वांट टू फाइंड आउट अ suitable site for garbage disposal in my area. ठीक है? और सपोज let me take a more interesting topic. Suppose I want to find out the area suitable for rice cultivation. ठीक है? सो नाउ व्हाट आई नीड टू हैव, मुझे अब वो सारे पैरामीटर्स चाहिए जो राइस के लिए जरूरी है. लाइक आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट द एरिया विच गेट्स टेम्परेचर. सपोज 20 डिग्री to 30 डिग्रीज यूज इज सुटेबल फॉर राइस. ठीक है? आई नीड टू हैव द डेटा ऑफ प्रेसिपिटेशन. सपोज राइस में है 100
सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल क्रिएट दिस डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पूरे इंडिया में मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट ट्रेस आउट द प्लेसेस हैविंग टेम्परेचर ऑफ 20 to 30 degree. Suppose these places are having temperature of 20 to 30 degree. These are some places having rainfall. ठीक है। अब ये सब जो डेटा है ना, ये हमें मिलता है अलग अलग सोर्सेस से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न कि हमें कहीं से कोई भी डेटा किसी भी सोर्स से मिले, वी शुड ट्राई टू क्रिएट दैट सुटेबल इन द जीआईएस प्लेटफॉर्म। ठीक है। और वो हम कब कर पाएंगे, जब हमें एग्जैक्टली अच्छे से पता होगा अबाउट द लोकेशनल एस्पेक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक तरीके से अगर चलेंगे, डेटा क्रिएट करना है, फिर हमें डेटा को मैनेज करना है, बिकॉज इन जीआईएस वी व्हेनेवर वी वर्क विद डेटा, हमारा इतना ह्यूज डेटा बन जाता है, इवन समटाइम इट इज मोर देन व्हाट आवर सिस्टम कैन होल्ड। जैसे मेरे सिस्टम का अगर हार्ड डिस्क है 500 जीबी, कभी कभी डेटा हमारा 1 टेराबाइट तक बन जाता है। तो वी शुड नो हाउ टू मैनेज दिस डेटा प्रॉपरली। ठीक है। It is followed by data analysis, ठीक है, where we learn about all the tools that we use to analyze the data, and finally we learn how to get a proper output. ठीक है, how to get a proper output. ठीक है। Output means we can either we can have a hard copy map or we can upload this data on the web. ठीक है। So this is the systematic manner that we should follow. ठीक है। So this is how the GIS we have to deal with. पर सबसे पहले आज हम सीखेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन। ठीक है। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सपोज फॉर एग्जांपल दिल्ली टू कोलकाता। ओके। इन द जीआईएस प्लेटफॉर्म, जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो मुझे सबसे पहले दिल्ली का लोकेशन देना है और मुझे कोलकाता का लोकेशन देना है। वंस दिस लोकेशन विल बी प्लॉटेड प्रॉपर्ली, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो कुछ भी हमें करना है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन। ठीक है। So let me now elaborate the concept of location. What is location? Location is where it is. Where it is. कहाँ पे है। ठीक है। कहाँ पे है कैन बी एनीथिंग। Where it is, maybe where I am right now, where you are right now. Suppose मैं मुझे अभी एक मैप बनाना है कि हम कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट माई लोकेशन कि आई एम सिटिंग एट 73 डिग्री ईस्ट 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। सपोज some of you might be sitting in 75 degree east 20 degree north. So what it will give us, it will give us our location. ठीक है। And then once we'll upload the location on the software can further help us to analyze it. तो location का मतलब होता है where it is. Now location are of two types. ठीक है। Location are of two types. One is absolute and another is relative. ठीक है। Absolute क्या होता है, देखो in Google Earth if I show, एक मिनट, just a minute. Yeah, let me turn. Sorry for the inconvenience. Yeah, am I audible? Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Right. So look, now there are location are two types. One is absolute, another is relative. Okay. Now what is absolute? तो देखो, in the Google Earth, we can easily get the absolute location of any area. Suppose I am in Vikaspuri right now. ठीक है। If I just put the place mark over here, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, चलो मैं आप लोगों को अभी सिंपल वाला दिखाती हूँ। ठीक है। सो दिस इज द डिग्री मिनट सेकेंड्स आई एम यूजिंग। तो विकासपुरी इज इन 28 डिग्री 30
20 degree 38 minute 19 second north and 77 degree 4 minute 19.42 second east. अब ये क्या है? ठीक है, this is the absolute location of Vikaspuri. ठीक, now if I will put this value on the software, software will automatically understand कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, in which particular place we are working. Okay, this is absolute. और रिलेटिव क्या है? रिलेटिव होता है कि सपोज मैं किसी एक एरिया पे काम कर रही हूँ जिसका मुझे इतना नहीं पता, या सपोज मैं आप मेरे पास आ रहे हो तो आई विल से कि माई आई एम 200 मीटर अवे फ्रॉम द पीवीआर विकासपुरी. तो व्हाट आई यूज? आई एम यूजिंग द माई लोकेशन इन रिलेशन टू पीवीआर. हम बोलते हैं ना कि इधर आ जाना, एक मंदिर मिलेगा, मंदिर के 5 कदम आगे. दिस इज कॉल्ड दिस रिलेटिव लोकेशन. अब जीआईएस में दोनों चीजों का यूज करना पड़ता है. समटाइम्स वी गेट सो रॉ डेटा, कभी इतना रॉ होता है, उसको समझाने के लिए, सॉफ्टवेयर को उसके बारे में बताने के लिए हमें उसके प्लेस मार्क, लैंड मार्क का पता करना पड़ता है. ठीक है, तो लोकेशन मतलब वेयर इट इज. नाउ वेयर इट इज कैन बी expressed either in absolute manner. अगर absolute है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें किस रिलेशन में, रिलेशन टू समथिंग, रिलेशन टू सम प्रोमिनेंट लैंडमार्क, हमें उसको बताना होता है. ठीक है, अब the question is how this location is expressed in GIS. ये सब जो लोकेशन है जीआईएस में कैसे हम इसको बताते हैं. ठीक है, तो देखो मैं अभी आप लोग को पहले एक दिखाती हूँ. In ArcGIS, let me show. ठीक है, तो whenever we open, अभी मैं आर्क में जो दिखाने के लिए यूज कर रही हूँ. ठीक है, अभी आप लोगों को आर्क पे काम नहीं करना, अभी हम क्यू पे काम करेंगे, बस दिखाने के लिए. बिकॉज इन आर्क इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द थिंग्स. ठीक है, बट इट टेक्स टाइम्स टू गेट ओपन. ठीक है, अब देखो. नाउ इफ आई ऐड, हाँ, so this is the software. ठीक है, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम या मैप कैनवस. ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं एक और एंड आई से दैट आई कॉल दिस एज अ मिनी वर्ल्ड. ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं वर्ल्ड का एक मैप खोलती हूँ. ठीक है, इफ आई ऐड अ वर्ल्ड शेप फाइल. ठीक है, देखो कैसा आ गया. नाउ इंडिया इज हियर, राइट. अब देखो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है, इट इज गिविंग मी द लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस 79 डिग्री 24. तो देखो इस शेप फाइल में, इस डेटा में हर जगह का लोकेशन प्रॉपरली सेट किया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए देखो सब जगह तो अपने अपने जगह में प्रॉपरली बैठ गए. इंडिया, हमेशा इंडिया इज टूवर्ड्स द ईस्ट इन द वर्ल्ड, ये वेस्ट है. ठीक है, now how is this possible? Because this data contains a perfect locational value. ठीक है, now this locational value we can provide to any data using a coordinate system. So there are basically two coordinate system we have: geographic coordinate system and projected coordinate system. ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं अच्छे से about the coordinate system. So what is coordinate system now? ठीक है, बचपन में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में. तो कोऑर्डिनेट में होता है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ठीक है, तो बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज जीरो, और एज वी विल प्रोसीड टूवर्ड दिस साइड तो ये क्या हो जाएगा +1, +2, +3, +4, +5 लाइक दिस. ठीक है, ये क्या है 1, देन 2, देन 3, 4, 5 इन दिस वे. ठीक है, इधर को हम जाएंगे, दिस विल बी -1, -2, -3, -4 लाइक दिस, राइट. इधर को जाएंगे, अगेन द वैल्यू विल बी पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 इन दिस वे. ठीक है,
इधर को हम जाएंगे तो दिस विल बी नेगेटिव, -1, -2, -3 इन दिस, ठीक है। तो बचपन में याद है हम लोग को कैसा टास्क मिलता था कि लोकेट 1 by 1, ठीक है। तो दिस फर्स्ट वन, और ये क्या, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो लोकेट 1 by 1 में क्या करना है, फर्स्ट वी शुड फाइंड दिस इन एक्स। तो ये है एक्स का 1 और ये है वाई का 1। सो दिस इज द लोकेशन फॉर 1 by 1, ठीक है। अगर हमें अभी प्लॉट करना है -4 एंड +3, तो वी हैव टू फोकस द फर्स्ट इन द एक्स। तो ये हो गया -4 और ये हो गया +3। दिस इज द लोकेशन फॉर -4 एंड +3, राइट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगर हमें दो वैल्यूज मिल जाए, हम किसी भी एरिया को परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, जस्ट टू मेक इट इजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे इसका मैप के साथ क्या लेना देना। तो देखो, now this is being used, this coordinate system is being used to get the location of places, and we can do that either by using a geographic coordinate system or a projected coordinate system. So let me start with the first one, that is geographic coordinate system, ठीक है। So whenever there is the term coordinate system, means it must have one x-axis and another y-axis, ठीक है। In geographic, what happens? Taking this as the center, some angles are being made. तो देखो, जैसे मैंने ना सॉफ्टवेयर में, मैंने डेटा फ्रेम में अगर राइट क्लिक करके मैं करती हूँ डेटा फ्रेम प्रॉपर्टी, और मैं आई एम टेकिंग, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, ठीक है। ये भी बताऊंगी कौन सा कब यूज करना है। सपोज आई जस्ट टुक दिस, और मैंने जैसे अप्लाई ओके किया, तो व्हाट दिस डेटा फ्रेम विल डू, डेटा फ्रेम क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इट विल डिवाइड द डेटा फ्रेम इनटू सर्टेन एंगल्स, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अभी क्या किया था, आई जस्ट वेंट टू रैंडमली, आई जस्ट वेंट टू द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैंने इसको खोला, अफ्रीका का ये ले लिया। Here, look, the degree is how much? 0.0174. This is the value. तो ये जो एंगल डिफरेंस इसने बनाया, इतना छोटा छोटा एंगल, छोटे छोटे 0.7, इस तरह से छोटे छोटे इसने, once I will click it, it will automatically create this angle in the data frame, ठीक है। and the angle is very minute. Why so minute? ताकि छोटे से छोटा एरिया भी मेजर हो। छोटे छोटे ऐसे इसने एंगल बनाया, टेकिंग 0.7, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा बना देती हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रॉड बना देती हूँ, ठीक है। तो सपोज एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एंड इट विल बी जॉइंट लाइक दिस, ठीक है। जस्ट 0.17, 0.17 प्लस 1 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। Similarly, it will take this as a center, it will make some more angles like this, ठीक है। It will make some angle like this, this will again be joined and this will act as the longitude, ठीक है। तो ये क्या हो गया लैटिट्यूड, ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूड। ना इफ आई सपोज दिस इज 10 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा और ब्रॉड बताती हूँ, छोटे छोटे एंगल्स में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट वो हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल इसको और अच्छे से बताती हूँ। सो आई एम टेकिंग वन एज द एक्स एक्सिस लाइक दिस and one as the y-axis like this, ठीक है। And if I'm talking about the in the perspective of GCS, Geographic Coordinate System, तो once I click, जैसे मैंने इस डेटा फ्रेम में एक कोई भी जीसीएस, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैंने कोई भी जीसीएस को लिया, बिहाइंड व्हाट इट विल डू, द सॉफ्टवेयर विल डिवाइड द डेटा फ्रेम इन सर्टेन एंगल्स। जैसे देखो 10 डिग्री, ब्लैक कलर में लिख देते हैं, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल बता रही हूँ एग्जाम्पल, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, and this will automatically be joined like this, and this will act as the long latitude,
this will act as the latitude. And taking this as a center, certain angle will be made like this, 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree in this way. Okay, this will again be joined like this. So this will become the longitude. Okay. Now if I say that my location is 30 degree north and 20 degree east. So what I am meaning? I mean that इधर को जाएंगे तो नॉर्थ, इधर को जाएंगे तो साउथ, इधर को जाएंगे तो वेस्ट, इधर को जाएंगे तो ईस्ट. ठीक है. 20 डिग्री मीन्स 1 2 ये, एंड 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ 1 2 3 दिस वन, एंड 20 डिग्री मीन्स 1 2 दिस वन. तो 30 और 20 में कहाँ पे ये जुड़ रहा है? इट इज जॉइनिंग हियर. सो दिस इज माय लोकेशन. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी जगह का लोकेशन जीआईएस सॉफ्टवेयर में बता रहे हैं, टेकिंग एंगल एज द मीन्स. मीन्स क्या है? एंगल. मीन्स मतलब माध्यम, मीडियम. तो इसको बनाने का मेरा माध्यम क्या है? मीडियम. मीन्स क्या है? एंगल. एंड डिग्री एज द यूनिट. एज द यूनिट. ठीक है. इसका मेरा क्या है? यूनिट डिग्री. इसको और डिवाइड करेंगे इट विल बी मिनट्स, और डिवाइड करेंगे इट विल बी सेकंड्स. ठीक है. तो इन ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, so means when we have to work with geographic coordinate system, if I want to make a map or if I want to bring some data, मुझे सॉफ्टवेयर में कोई डेटा लाना है और उस डेटा का जो लोकेशन है वो मुझे मिला है डिग्री में, तो दैट मीन्स आई शुड वर्क विथ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. The second one is what? The second one is projected coordinate system. Okay, now what is this? The second is projected coordinate system. ठीक है. In this also देखो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, so the next one is, so here if I just expand it, ये these are the example of projected coordinate system. तो इसमें से अगर मैं if I need now let us first of all understand what is projected coordinate system. तो इन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्वियसली वी विल हैव एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक एक्स तो होगा ही. आई विल हैव एक्स एंड आई विल हैव अ वाई. ठीक है. ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई. ठीक है. नाउ इन प्रोजेक्टेड व्हाट हैपेंस. ठीक है. इन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वी ट्राई टू गेट द लोकेशन यूजिंग डिस्टेंस एज द मीन्स. जैसे कि अब मैं यहां पर हूं. ठीक है. Now how will I tell my location in projected coordinate system? So for that, what once I will take a example of any projected coordinate system. ठीक है. Suppose I am taking what we usually use. ठीक है. Suppose मैं UTM ले रही हूँ, मैं बताऊंगी what is UTM. I will explain that. Don't worry. Suppose I took this, है ना, and I am going with the apply and OK. Fine. So what will happen? It will divide, the software will divide the coordinate into certain distance. जैसे कि suppose center से 1000 मीटर toward east, 2000 मीटर toward east, 3000 मीटर toward east, 4000 मीटर toward east, 5000 मीटर toward east. ठीक है. Again towards the north also, suppose 1000 meter towards north, 2000 meter towards north, 3000 meter towards north. ठीक है. So now if I will tell my location in this perspective, तो इसका लोकेशन कितना होगा? 1 2 3 4 और थोड़ा सा आगे. So I would say 4100 meters toward क्या? East. ठीक है. And 3000 meter towards north.
मीटर्स क्यों लेते हैं? बिकॉज मीटर इज अ यूनिवर्सल यूनिट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी जगह का लोकेशन सॉफ्टवेयर को बताना चाह रहे हैं, टेकिंग डिस्टेंस एज द मीन्स, ठीक है, एंड meters as the unit, as the unit. That means we are adopting the projected coordinate system. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। Suppose Delhi. I'm just taking the example of Delhi. ठीक है, ये हुआ Delhi. तो अगर this is Delhi, right? I will take this place now. What's happening यहाँ पे? ये कैसे बंद हो गया? Let me take out Google Earth again. ठीक है, तो देखो, I'm just making a search of Delhi. Okay, and I'm putting the place mark over here. हाँ, so now what is the location of Delhi in geographic? देखो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है ना, मीन्स इट इज गिविंग मी द वैल्यू इन geographic कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो Delhi is 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। समझ में आ रहा है इसको कैसे इसका डिफाइन किया इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसने ऐसे डिवाइड किया एंगल, सपोज 10 डिग्री, 20 डिग्री और थोड़ा सा आगे 28। ठीक है, इस तरह से इधर भी कितना 70, राइट, ये वाला। तो if I will put the location of Delhi in this unit, तो सॉफ्टवेयर क्या समझेगा कि वी आर वर्किंग विद ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली इफ आई जस्ट चेंज इट, ये भी मैं समझाऊंगी यूटीएम क्या है। इफ आई चेंज इट टू सपोज यूटीएम, ठीक है, प्लेस मार्क ये क्या हो रहा है? इफ आई जस्ट पुट दिस हियर, now in which unit it is giving me the location in the perspective of meters, and this is the distance, मतलब लाइन से, सेंटर लाइन से this particular location is this much far or north। ठीक है, इधर के सेंटर लाइन से, दैट इज योर y, ठीक है, इधर से कितना है टुवर्ड्स नॉर्थ, हाउ मच इट इज, दिस मच। So if I will now put this value in the software, तो सॉफ्टवेयर will understand कि हमें दिल्ली पे काम करना है, इस एरिया पे काम करना है, किस पे काम करना है, इन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। So these are the two coordinate system we use in GIS to locate the place, to locate any place। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? अभी तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Ma'am, it's clear. Okay, let me show some more example, it will make it more clear actually। देखो, I just added this world country shape file, okay। So now if I'm moving the cursor, you can find कि the data are in decimal degree। डिग्री मीन्स इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? इस पे है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली आई हैव सेम डेटा, मेरे पास ये सेम डेटा है इन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आल्सो। लेट मी ऐड इट। देखो, ठीक है, नाउ इफ आई एम पुटिंग द कर्सर एनीवेयर, व्हाट यू कैन सी द डेट द यूनिट इन मीटर्स। ठीक है, मीन्स अब जहां पे मैं कर्सर रख रही हूँ ये क्या है, 8 5 6 7 6 7 2 8 0 away from the center towards east। और नेक्स्ट क्या है, 2 5 5 4 7 2 7 towards north। ठीक है, so these are the two coordinate system that we should be very much clear with। ठीक है, अभी ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कब जीसीएस यूज करेंगे, कब यूपीसीएस यूज करेंगे, राइट? व्हेन शुड वी यूज द जीसीएस,
and when should we use the PCS. तो देखो, the geographic coordinate system or the GCS, it is very flexible. ऐसा क्यों? क्योंकि in reality we measure the location इन डिग्री ओनली, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, अर्थ राउंड है, सर्कल है, सर्कल को हमेशा हम डिग्री में ही मेजर करते हैं। बचपन से आप लोगों ने करा होगा, सर्कल में हम प्रोजेक्टर लेते थे एंड वी यूज टू टेक द कॉम्पस एंड वी यूज टू मेजर इट इन डिग्री, ठीक है। तो सर्कल हमेशा डिग्री में और एंगल में ही मेजर होता है। So that means the GCS is very flexible and it is natural. GCS काफी नेचुरल है, ठीक है। तो अगर आपको अभी एक नॉर्मल सा मैप बनाना है, या फिर देखो इसमें आप लोग खुद देख सकते हो, इन द जीसीएस वी वर हैविंग, पीसीएस में देखो शेप डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है, जीसीएस में शेप बहुत अच्छा था, राइट। तो इन पीसीएस इज व्हाट, ये प्रोजेक्टेड है, पीसीएस इज नॉट नेचुरल, ये तो हमने प्रोजेक्टेड किया है, हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि PCS is used to do further analysis. जैसे कि अगर आपको आगे एरिया निकालना है, आपको आगे डिस्टेंस निकालना है, वो आप डिग्री में नहीं कर सकते। सपोज आई जस्ट एडेड दैट वर्ल्ड मैप ना, अगर मैं इस वर्ल्ड मैप को जीसीएस वाला वर्ल्ड मैप खोलती हूँ, ठीक है, लेट मी अगेन ऐड द वर्ल्ड मैप विथ जीसीएस, ठीक है, वर्ल्ड मैप विथ जीसीएस, ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड मैप जिसमें कि आई कैन सी ऑल द कंट्री इन परफेक्ट शेप, बट आई कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम द बेस द डेटा इज इन डिग्री, इसके बेस से चीजें डिग्री में है, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। अगर मुझे अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, आई कैन नॉट मेजर इट करेक्टली बिकॉज द बेस इज इन डिग्री। But most of the time we use this GCS to make a raw map, और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, क्योंकि यही हमारी दुनिया है। अर्थ को हम, अर्थ इज सर्कल, उसको हम हमेशा डिग्री में और एंगल में ही मेजर करते हैं, ठीक है। पर प्रोजेक्टेड हमने बनाया है, वी हैव क्रिएटेड इट फॉर व्हाई, फॉर व्हाट, फॉर फर्दर एनालिसिस। अगर मुझे एरिया निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बफर बनाना है, हॉटस्पॉट एनालिसिस करनी है, ठीक है, टू मेक आवर वर्क प्रिसाइज, टू गेट अ प्रॉपर डेटा, वी हैव प्रोजेक्टेड, वी हैव क्रिएटेड दिस बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे हम जीआईएस पे काम करेंगे, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉट करना पड़ेगा, वी हैव टू अलॉट द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू आवर डेटा, okay. If you think that you need to do further mathematical calculations, then you should start your work with projected coordinate system, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई डेटा मिला जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देयर आर ऑप्शंस ऑफ कन्वर्टिंग द जीसीएस टू पीसीएस एंड पीसीएस टू जीसीएस, को हम कहते हैं ज्योग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बट सबसे पहले अभी आप लोग यही समझो कि जीआईएस में अगर हम किसी भी जगह का लोकेशन पुट कर रहे हैं, हम लोकेशन पुट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ऑल ma'am. फाइन, चलो ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि हमें लोकेशन चाहिए, क्योंकि बिना लोकेशन के तो काम नहीं होगा, है ना। और लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे सॉफ्टवेयर को, जैसे कि नाउ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, राइट। तो सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कराने के लिए क्या करना है, या तो डिग्री में डेटा पुट करेंगे या मीटर्स में डेटा पुट करेंगे, तो सॉफ्टवेयर समझ जाएगा, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लोकेशन का तो पता चल गया, ठीक है ना, लोकेशन तो हमने बता दिया। नाउ वी हैव फ्यू मोर प्रॉब्लम। वो क्या? वो ये कि हमारी जो अर्थ है ना, वो
इलिप्सॉइड वो सर्कल है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन है। कोऑर्डिनेट से 2 डायमेंशन का तो सोल्यूशन हो गया। तो व्हाट अबाउट द हाइट, व्हाट अबाउट द 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो फॉर दैट with the coordinate system we also have to add the datum. datum क्या होता है? datum का डेफिनेशन होता है बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अब ये बेस्ट फिट लाइन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, हमारी जो अर्थ सरफेस है वो कैसा है, हम अज्यूम क्या करते हैं, अज्यूम की हमारी अर्थ सरफेस है ऐसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलिप्सॉइड। क्या कहते हैं? इलिप्सॉइड। ये अजम्पशन है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। पर क्या ये ऐसा है? नहीं। our earth is not so smooth. how is the actual face? ये जो अर्थ का फेस है, अर्थ का जो चेहरा है वो एक्चुअल में कैसा है? इट इज लाइक दिस, समवेयर वी हैव माउंटेन, समवेयर वी हैव प्लेट्यू, इट इज लाइक दिस, राइट? दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द रियल फेस ऑफ द अर्थ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जियोइड। क्या? जियोइड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ना तो हम एग्जैक्टली जियोइड पे काम कर सकते, ना ही हम एग्जैक्टली इलिप्सॉइड पे काम कर सकते, क्योंकि दोनों ही जीआईएस एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा, ठीक है। So in that case, what we do, we take an average of ellipsoid and geoid. हम एक एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। अभी एवरेज भी हम ऐसे ही नहीं ले सकते, we cannot take this average randomly. For that we should have some proper mathematical calculations. और ये सब कौन करता है? ये सब करता है EPSG. There is an authority, EPSG, that is European Petroleum Survey Group. EPSG ये सब कैलकुलेशंस वगैरह सब करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज गिवन इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें नॉलेज होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, व्हाट शुड बी द डेटा, व्हाट शुड बी व्हाटएवर, इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय ईपीएसजी, ठीक है। अब देखो डेटम कैसे कैलकुलेट होता है। नाउ डेटम आर ऑफ 2 टाइप, एक है यूनिवर्सल और एक है लोकल, ठीक है। इन यूनिवर्सल, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल के लिए क्या करते हैं? फ्रॉम द सेंटर a radius is being made taking the average of ellipsoid and geoid, ठीक है। इसको कहते हैं A, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज A। अगेन फ्रॉम द सेंटर a perpendicular is made taking the average of this ellipsoid and geoid, जो भी इसका हाइट डिस्टेंस है, ठीक है, and it is called as B. Now a formula is being made, that is A minus B by A. तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, सपोज आई गॉट X. Now this X will be used to make another circle. ये क्या होगा? This will be the best fit line for us. तो कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये इसका वैल्यू भी पुट किया जाता है, और ये सब बना बनाया मिलता है। जैसे कि देखो यूनिवर्सल का एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्सल डेटम का एग्जाम्पल है WGS84, दिस इज द डेटम, ठीक है। अब देखो इतने अच्छे से इसको मिला के हमें इन्होंने दिया हुआ है। तो देखो व्हाट इज दिस, so if I will just click on this WGS 1984, this is the name of the datum, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इतना अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के हमें दिया हुआ है GCS, that is the coordinate system, and WGS84, this is the datum. So once I click this and I will go with the apply and OK, ठीक है, what it will assume, सॉफ्टवेयर क्या समझेगा? सॉफ्टवेयर एक तो
ऑटोमेटिकली एक कोऑर्डिनेट बना के एंगल्स बना देगा, प्लस ये बेस्ट फिट लाइन है जो WG64 में क्रिएट किया गया है, इसको कंसिडर करके चलेगा। इट विल अज्यूम कि इस वाले अर्थ के इस फेस को लेके चलना है। दिस कॉल्ड दिस डेटम। डेटम हमें बनाना नहीं है, डेटम का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो WG64, अब ये भी देखो WG64 यूटियम 43। तो दिस इज द डेटम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, so it will now try to find my location on the basis of distance, and it will consider that कि it has to consider the space of the earth। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल डेटम। तो डेटम क्या होता है? एक ऐसा, क्योंकि ना तो हम इस इलिप्सॉइड पे काम कर सकते ना हम एस पे काम कर सकते, तो एक दूसरा हमें परफेक्ट बेस्ट फिट लाइन चाहिए, हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो अर्थ को एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही है। ठीक है, और इसको हमें कंबाइन करके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया गया है। So this was the universal datum. Now let me talk about the local. Local में क्या होता है? ठीक है, in local datum, again the ellipsoid must be there and the geoid must be there, right? Ellipsoid और geoid तो होना ही है। So now, suppose I am working in this area, ठीक है? तो मुझे एक ऐसा फेस चाहिए जो मेरे इस एरिया को परफेक्टली फिट कर दे। ठीक है, तो सपोज वी आर वर्किंग हियर, तो अभी क्या करेंगे कैलकुलेशंस के लिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अ रेडियस विल बी मेड, दिस विल बी द ए, और इसी के परपेंडिकुलर एक एवरेज रेडियस बनाया जाएगा इलिप्सॉइड एंड जियोइड का। अब ये जो बनाया गया है ना, ये देखो इसके हाइट डिफरेंस पे, सपोज इसको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये इसका फेस है इलिप्सॉइड इस एरिया का, और इसका ये क्या होगा, कोई भी इसका जो टेरेन कंडीशन है, इन दोनों का डिफरेंस, it will make a radius like this. So it will be the A, it will be the B, and again by using that formula, जितना भी इसका distance होता है, so A minus B by A, I will get a X again, and now this X will act as a new radius. इस X से एक नया circle बनाया जाएगा, and this circle will resemble this face perfectly. This is the local. जैसे इंडिया का देखो लोकल डेटम क्या है, इंडिया का लोकल डेटम है एवरेस्ट इंडिया नेपाल, दिस वन। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये डेटम का नाम है, विच इज नाउ इट इज बीइंग कंबाइंड विथ GCS, इसको कंबाइन किया गया है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ठीक है, और नाउ इफ आई विल जस्ट टेक दिस और मैं अप्लाई ओके करूंगी, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ना इंडिया पे, जैसे कि अभी मैं सॉफ्टवेयर ऐसा है, जैसे मैंने एवरेस्ट इंडिया नेपाल दिया, इट विल जूम इनटू दिस लोकेशन, इट विल जूम इनटू दिस लोकेशन, कंसीडर इट्स टेरेन कंडीशन। So this is called as the datum. Now, to get the location of any place, both the datum and the coordinate system are combined together. And all these tasks are being done either by EPSG, European Petroleum Survey Group, or by ESRI. ESRI manufactures this ArcGIS software. Okay? So these are the two very basic concepts that we should be very much clear before stepping into this GIS. अब तक क्लियर है सबको ये कंसेप्ट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मृगांका, सचिन, शालिनी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, तो मैं ma'am. अभी आप लोग को एक टास्क दे रही हूँ, जो मुझे आप लोग, चलो कल जन्माष्टमी परसों तक करके देना। आप लोगों को मुझे या तो आप हाथ से लिख के दे दो या टाइप करके दे दो, यू हैव टू राइट अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डेटा।
आप लोग को जो भी समझ में आया, प्लस मैं आप लोग को बुक भेजूंगी, ठीक है। आई विल शेयर अ बुक ऑन जीआईएस, उसका थोड़ा सा हेल्प ले लेना। और मुझे एक एक पेज, डेटम का तो खैर एक पेज नहीं होगा, या हाथ से भी लिख के फोटो खींच के भी दे सकते हो। तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, व्हाट एवर यू अंडरस्टूड, जो भी आपको समझ में आया, ठीक है। प्लीज डोंट टेक द लैंग्वेज फ्रॉम इंटरनेट और एनीवेयर, अपने लैंग्वेज में जो कुछ भी समझ में आया, ठीक है। और एक चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जीआईएस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके परसों तक भेजोगे, हो जाएगा। हाथ से लिख के फोटो खींच के चाहे व्हाट्सएप कर देना, यस मैम, हो जाएगा। ठीक है। Okay, और मैं ma'am. आप लोग को एक बुक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उस बुक में ये दोबारा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, इट विल मेक यू मोर क्लियर, ठीक है। एंड वट एवर डाउट यू विल हैव, you can ask me in the next class, ठीक है। So any doubt you have, नो is there मैम। any doubt? ठीक No, है। so ma'am. चलो, तो इसको एक बार पढ़ लो, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद सम ऑफ द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। ओके चलो, okay, then I'm sharing the video, and let's wind the class. ओके मैम, थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye, take care. बाय मैम।